we learned about lot of things about Types of profit. profits, types of profits. Okay, who going to be tell me all what we learned last Sunday? We have the YARA profit. YARA profit. of the profit. Okay, Chosen profit. huh? Total 7 types. Okay, one by one. YARA profit is Yeah. the profit of the profit. which Okay. is Moses, Very good. because God said that he will be the God to the Pharaoh, and Aaron will be the prophet who will be under Moses. So this is Very what- nice. We also learned that Abraham was also a prophet because he can hear the voice of God. Very good. We Yes. learned about the seasonal prophets. Very nice. Seasonal prophet, Prophet. chosen prophet, Called prophet. called prophet. Who was prophet Samuel, who was a seer and a prophet. Very nice. Seer and the prophet. Made prophet. Dual prophet. Made prophet. Yes. Elisha. Made prophet. Some people are not prophet, but they're called into that office of prophet. Very good. There is a mysterious prophet. sir. Mysterious prophet also. और जो पास्टर होते हैं इसके 6 नंबर होते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं इनके 7 Okay. और जो 7 नंबर है वो खुदावन के होते हैं। Moses Okay. को 71 elders पे Very good. and the spirit of the prophets will follow the Subjected under to the prophet. Okay. During those days, the nations were governed by eucracy, which is by the law of God. Law of God. God Very told- good. God told Moses that he will make Moses a god to the Pharaoh, and Aaron will be his prophet. Very nice. अब्राहम खुदा का साइलेंट प्रॉफिट था और खुदा ने बादशाह को ख्वाब में कहा कि ये मेरा नबी है तो तू इसको अपने मुल्क से जाने दे और खुदा तुझे बरकत दे। Very good. Yes. Jonah Robin. Yes. the word कोड प्रॉफिट पर बताया था Okay. कार्ड वाले जो 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 बुलाए जाते हैं Okay. और इसके अलावा मेड प्रॉफिट फिर साइलेंट प्रॉफिट है फिर चोजन है फिर यारे हैं और मिस्ट्रेस प्रॉफिट Very good. and Very good. We learned that the person, if is a prophet, his senses can also be powerful. If he cannot see, he can hear the voice. If he cannot hear, he can smell. And if he cannot smell, he can taste. Very All good. of his Very good. senses work because he is a man of God and he is prophet. Very There is nice. something about prophet Amos आपने बताया था. He used to correct the psychom of the he was a called prophet. He is a called prophet. Yeah. Yeah. And the word Yare means honor and fear. Yes. Very The nice. people who are honored by God, that when something happens, God Himself stands up for them. Very good. So today what we going to learn? Pastors. Okay. Today we learn about the pastors. So what is the pastor actually? जो What do you think about the pastor? Who is the pastor and how he become a pastor and what is the quality of the pastors? Spiritual teacher. Spiritual teacher. Okay. Who leads us in the ways of the Lord, in teaching us about the Word of God. Okay. पास्टर वो होते हैं जिनको कॉल करके भी पास्टर वो किया जाता है। Pastor is a person who should take care of the people. Very good. Pray for Pastor is the people person standing, who yeah. teach the word of God to his people. Okay. Pastor is the one who is a leader and a role Okay. model. Yes. Pastor is a representative of God. He represents God in front of the people. Okay. He is the medium for our prayers to reach God as well. Okay. Very good. और बस इतना से पता है पास्टर के बारे में. हाँ? Come on. The person who leads us in prayers. Very good. और टीचर होता है He is the टीचर teacher, होता yeah. है. Okay. और खुदा के कलाम को प्रीच करता है और हमें सिखाता है कि we go and also preach. Okay. बस. So, नहीं. जिसे मुझे पास्टर्स को ऑर्डेन करते हैं Okay. और मुझे हमें जो कुछ लोग शौक से बनते हैं The prophet have pastors खुदा की तरफ से उनको काफी गिफ्ट्स होते हैं कहीं कोई healing के prophecy के Pastor Okay. is made by man. Okay. It's Pastor is ordained made by by man. Okay. बहुत से खादम ऐसे होते हैं जिनको
खुदावन की तरफ से कॉलिंग होती है और बास ऐसे होते हैं जो हादसी तौर पर पास्टर बना दिए जाते हैं। Okay, very good. Or They also prophesy. yes, the Holy Spirit is moved हम्म, and they can prophesy. Or sit properly. Come on. Pastor और pastor के बारे में सिर्फ इतनी सी knowledge. कलीसिया का रहनुमा होता है। कलीसिया का रहनुमा होता है और वो बपतिस्मा पास्टर देते हैं, को पास्टर- Okay, चलो शादी बात- करवाते हैं, शादी कराते हैं, बपतिस्मा देते हैं और पास्टर वो है जो अपनी कलीसिया की ये तो उसके काम बता रहे हो ना आप. एक्चुअली पास्टर क्या है? to take care of his flock, Okay, very good. That's it. Spiritual guide. spiritual guide, Spiritually, okay. और and as well worldly. yes, किशोर. पास्टर ज्यादा तो नहीं पता, चंद ही पास्टर हैं जो अपनी कलीसिया के हर वक्त खुशी में भी इनके साथ रहते हैं और अगर दुख आए तब भी वो अपना किरदार Okay, sit down. The pastor, what the word of the Lord says about the pastor is that he's always a man, but like now these is the lady pastors as well. Yeah, very good. The word of God declared there is a pastor is only a male, but there is a no lady pastor also. Okay, और बस come on बस शोर और किशोर Sure. come on yes pastor के बारे में बस इतनी सी मालूमात. So today we learn more about the pastor. What is the pastor actually? The word pastor came from the Latin. Pastor means shepherd. Okay? जो पास्टर का वर्ड है, जो पासबान का वर्ड है, उसका लातीनी के अंदर जो मतलब दिया गया है उसका मतलब है चरवाहा. Okay? In Hebrew the word raha, R-A-A-H, also mean to feed, यानी किसी को खिलाने वाला. ओके, टेंड, लोगों का रुझान खुदा की तरफ लेके आने वाला. एंड केयरफुल, लोगों के देखभाल करने वाला. ओके, इन Jeremiah 3:15 if we read Jeremiah chapter number 3 verse number 15, we learn about pastor. आज हम पासबान के बारे में सीखेंगे कि पासबान कैसे होने चाहिए, पासबानों की क्या खूबियां होनी चाहिए खुदा के कलाम में से. And I will give you pastors according to mine heart, I will give you the pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. जो आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या करेगा, फीड करेगा. रीड इन उर्दू ऑल्सो. और मैं तुमको अपनी खातिर ख्वार चरवाहा दूंगा और वो तुमको दनाई और अक्लमंदी से चराएगा. दनाई और अक्लमंदी से अपनी भेड़ों को चराएगा. चराएगा. So it means pastor is not the boss of the church. Okay? पास्टर जो है कलीसिया का बॉस नहीं है कि मैंने जो डिसाइड कर लिया लोगों ने वही करना है. He doesn't have authority according to the word of God. उसका क्या काम है? उसका काम है और मैं तुमको अपनी खातिर ख्वार चरवाहे दूंगा और वो तुमको दनाई और अक्लमंदी से क्या करेंगे, चराएंगे. दनाई और अक्लमंदी से लोगों की खिदमत करना, ना कि लोगों पर हुक्मरानी करना. ओके, बहुत सारे पास्टर जो हुक्मरानी करते हैं, लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लोगों को दबाव में लेके आते हैं. दैट इज नॉट द गॉड्स कॉल. ये खुदा की तरफ से नहीं है. ये खुदा की तरफ से ऐसे चरवाहे खुदा ने नहीं दिए, ऐसे पासबान नहीं है जो कि आजकल हमें इजीली ऐसे पासबान देखने को मिलते हैं. पास्टर इज नॉट अ बॉस ऑफ द चर्च. पास्टर जो है वो खिदमत गुजार है कलीसिया का, लेकिन वो कलीसिया के बॉस बने हुए हैं. अगर मैंने कुछ कह दिया तो वही होगा.
Okay? He does not rule with the power, but today pastor rule with the power. वो अपनी कुव्वत से, अपनी लियाकत से लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं, जो कि खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है. But today pastor rule with power. He does not rule with the power, but lead with love. उसे पावर से लोगों के ऊपर हुक्मरानी नहीं करनी, बल्कि खुदा की मोहब्बत से कलीसिया की रहनुमाई करनी है. कलीसिया के ऊपर प्रेशर नहीं डालना. If I put pressure, this church is overflow. मैं भी लोगों को डराना शुरू कर दूं, अगर तुम चंदा नहीं दोगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कमर की दर्द निकल आएगी, बुखार हो जाएगा, वो जो पैसा है वो उधर चला जाएगा, है ना? कलीसिया के अंदर ये सारी बातें मैं नहीं कर सकता. That is not my call. आजकल पासवान ऐसे करते हैं, लोगों को डराते हैं, अब धमकियां देते हैं, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते हैं, अपना खौफ, जबकि उनके दिलों में खुदा का खौफ होना चाहिए. And it's absolutely wrong. John 21 verse number 17 says, यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 17वीं आयत. Jesus said to the Peter, feed my sheep, or boss my sheep. You are the boss of my sheep. आजकल बॉस बने हुए पास्टर, वो हुक्मरानी करते हैं, वो भेड़ों के ऊपर अपना प्रेशर डालते हैं. God said to Peter, what he said? In return, brother, 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, feed my sheep. Feed my sheep. मेरी भेड़ों की क्या करनी है? गलाबानी करनी है, रहनुमाई करनी है. क्या उन पे हुक्म जताना है? हाँ, उनको परेशान करना है, उनकी रहनुमाई करनी है. ये नहीं कि उनके ऊपर हुक्म चलाना है, उनको परेशान करना है, उनके ऊपर मुसीबत डाल देनी है, लोगों को मुश्किल में डाल देना है. Pastor's first duty is to feed God's people. सबसे पहली उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये काम है कि खुदा के लोगों की क्या करना है? उन्हें रूहानी ग़िज़ा से खिलाना है. ओके? उसकी सबसे पहली ड्यूटी है कि लोगों की रहनुमाई खुदा के कलाम से करनी है. किससे करनी है लोगों की रहनुमाई? खुदा के कलाम में से करनी है. With his word. But today the pastor is full of entertainment. Full of entertainment. आप जाएं चर्चों के अंदर एंटरटेनमेंट होती है, चर्चों के अंदर डांसेस किए जाते हैं, चर्चेस के अंदर वो पाकीज़गी, वो होलीनेस ही खत्म कर दी गई है, एंटरटेनमेंट का स्पॉट बना दिया है. It's not my opinion, but it's truth. ये मेरा ओपिनियन नहीं है. आप फेसबुक पे जाके देख लें, चर्चों के अंदर डांस हो रहे हैं, स्टेज के ऊपर डांसेस किए जाते हैं, हाँ, टैब्लोस किए जाते हैं खुदा के घर के अंदर. He studies diligently. सबसे पहले खादम का काम है कि उसे खुदा के कलाम की अच्छी वाकफियत होनी चाहिए. 2 Timothy chapter number 2 verse number 15. अगर खुदा के खादम की खुदा के कलाम के साथ अच्छी रहनुमाई, अच्छी वाकफियत नहीं, तो वो कलीसिया का अच्छा चरवाहा नहीं है. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ओके, उर्दू में पढ़े. 2 तिमुथियुस उर्दू में करें. कौन सी आयत? 15, दूसरा बाप उसकी 15. अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की अपने आप को खुदा के सामने मकबूल करना है, लोगों के सामने नहीं करना कि लोग कहें वाह 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 वाह, ये पास्टर है सबसे जबरदस्त पास्टर, इसका चर्च भरा हुआ है, वाह 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 वाह. ऐसा नहीं करना हमने.
एज अ पास्टर के लिए खुदा के कलाम में लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने क्या कर, मकबूल कर के खुदा तुझसे खुश हो जाए, खुदा तेरी खिदमत से खुश हो, खुदा वो काम देखे जो तू कलीसिया के अंदर कर रहा है. गॉड वांट टू सी दिस थिंग. और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो. खुदा के कलाम को लोगों के लिए मैनिपुलेट मत करें. बहुत से लोग हैं वो सच्चाई नहीं बताते, पास्टर के मेरे कलीसिया के लोग चले जाएंगे, वो हक की बात, सच्चाई की बात नहीं बताते कि लोग चर्च में से चले जाएंगे. जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता है, that is the call the pastor. और आजकल हम देखते हैं पास्टर्स ने क्या किया हुआ है. Everybody has accountable before God. सबने एक दिन जवाब देना है. अपनी ड्यूटी हमारी कैसी होनी चाहिए, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसा काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर. ऐसा काम करने की कोशिश कर कि लोग ये जाने के इस खादम के पास जब हम जाते हैं, जब हम इससे दुआ कराते हैं, जब इनसे मिलते हैं, तो खुदावन का रूह उसमें से होके काम करता है, ना कि डर की वजह से. He delivers the God's word in the season and out of season. Okay? Chapter number 4, verse number 2. Same. Yeah. कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रह. That is not the time when you are in the trouble, you leave the congregation, you leave everything. When the time is good, you come back and put a pressure on the people. That is not the way. ये काम नहीं है खादम का. Preach the word, be instant in season, out of season. ये नहीं कि अच्छे टाइम में अच्छी चीजें जब आ रही हैं तो हम बड़े खुशी से खुदा की मनादी करें. जैसे ही मुश्किल वक्त, परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें आती हैं तो हम सब चीजें छोड़ के भाग जाते हैं. That is not the way. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Go to Urdu also. और तालीम के साथ समझा दे और मलामत कर और नसीहत कर. ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा है. लोगों को क्या करना है, उन्हें बोलना है तू गलत है, ये गलत है. Nowadays, pastor is allowing the church and the flock. They are going one church, they are going to second church, they are going to third church. एक ही दिन में 3 लोग चर्च करते हैं. कैसे खादम है जो लोगों को ये नहीं कहते कि एक ही चर्च कर भाई, खुदा एक ही चर्च में है. 3 चर्च करने से कुछ अच्छा नहीं हो जाना. वो मलामत इसीलिए नहीं करते कि ये बंदा चला जाएगा तो इसके साथ 10 बंदे भी चले जाएंगे, मेरा चंदा भी कम हो जाएगा, मेरी दायित्व भी खत्म हो जाएगी. That's why they are not telling them. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे. किसको समझाना है? कलीसिया को. कलीसिया को समझा दे और मलामत और नसीहत कर. This is not good for you. This is not good for you. This is not good for you. मलामत और क्या कर? नसीहत कर, मलामत कर, उन्हें बता ये गलत है. क्यों नहीं मैं बता सकता? क्योंकि मुझे पता है कि अगर तू उधर चला गया तो फिर चंदा भी उधर जाएगा, दायकी भी उधर जाएगी, तू उधर भी चला जा, उधर भी चला जा, उधर भी चला जा. ऐसा काम नहीं करना. ये पासबान की जिम्मेदारी है. एंड आई सी देयर इज अ ट्रेंड. लोग एक चर्च, 2 चर्च, 3 चर्च, 3 एक ही दिन में चर्च करते हैं. एंड दे आर इन द मिनिस्ट्रीज वर्क. क्योंकि खादम को इतनी चीजों का पता ही नहीं कि कितने लोगों को कौन सी खिदमत देनी है, और जो खिदमत गुजार है वो एक ही चर्च के खिदमत गुजार होने चाहिए, ना कि 3 कलीसिया के.
दो कलीसिया के भी खिदमत गुजार लोग हैं। आई एम शॉक्ड। He ensured that every sheep is spiritually nourished. खादम का ये काम है कि हर एक भेड़ जो खुदा के घर में बैठी है वो रूहानी तौर पर क्या पाए? तरक्की पाए, रूहानी तौर पे बरकत हासिल करे। Amen. As a pastor, I guide you. पास्टर का क्या काम है? गाइड करना, रहनुमाई करना। किस चीज की? फॉल्स डॉक्ट्रिन की। फॉल्स डॉक्ट्रिन। आजकल सिर्फ यही डॉक्ट्रिन की जाती है कि इतने दे दो, उतने दे दो, ये दे दो, वो दे दो। चर्चों का चंदा पूरा नहीं हो रहा, गाड़ियों के किराए पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं पूरा हो रहा, वो नहीं पूरा हो रहा। दैट इज फॉल्स डॉक्ट्रिन। ये खुदा के कलाम में नहीं है। If you sow in the kingdom of God, you sow in the kingdom, the God is going to bless you. Pastor नहीं कुछ कर सकता। हमेशा याद रखें, जब आप 1 दरम, 2 दरम, 5 दरम, जितने भी आप अपनी हैसियत से खुदा के घर में डालते हैं, उसका अजर खुदा देता है, पास्टर नहीं दे सकता। Remember that. फॉल्स डॉक्ट्रिन से परहेज करें। आजकल बहुत सारी डॉक्ट्रिन चल रही हैं। डिवीजन, लोगों के अंदर जुदाइयां पैदा करते हैं। कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर जुदाइयां हैं। एक ग्रुप, एक चर्च के अंदर 2-2, 3-3 ग्रुप बने होते हैं। वो उसको नहीं आगे आने देता, वो उसको आगे आने देता। दैट इज द पास्टर ड्यूटी। ये एक पासवान की ड्यूटी है। डिसेप्शन, घर के तो कलीसिया के अंदर ही धोखा हो रहा होता है। कलीसिया के अंदर ही लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, खुदा के खादम को धोखा, क्योंकि खुदा का खादम खुद लोगों को धोखा दे रहा होता है। इसलिए डिसेप्शन कलीसिया में एंट्री करता है। स्पिरिचुअल अटैक, बहुत सारे खादमों को यह पता ही नहीं कि स्पिरिचुअली अटैक होता क्या है। They doesn't understand the spiritual attack, क्योंकि जब तक आप खुदा की हजूरी में घंटों घंटे नहीं बैठेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। लोगों को फोन करने से, बुलाने से स्पिरिचुअली अटैक का नहीं पता चलता। लोगों के ऊपर प्रेशर डालने से स्पिरिचुअली अटैक का नहीं पता चलता। लोगों के साथ नहीं बैठना, आपने खुदा के साथ घंटों घंटे बैठना है, फिर खुदावंद आपको उठाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअली अटैक क्या है। टुडे आई वांट यू टू डिसर्न द स्पिरिट। डोंट फॉलो एवरीवन हु कॉल यू। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। Don't follow everyone. As a pastor, I tell you, हर किसी के पीछे मत जाए। खुद अपनी आंखों से खुदा के कलाम को पढ़े और फिर खुदा के खादम की जिंदगी में वो चीजों को देखें, and then you can follow it. फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ही इस खादम की जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक है भी या नहीं। इस खादम की जिंदगी में खुदा नजर भी आ रहा है या नहीं। ये लोगों का काम है कि वो खुदा के खादम को देखें कि वो खुदा का खादम इस लायक है भी या नहीं। पास्टर लीड बाय करेक्टर, नॉट बाय कमांड। आज लोग हुक्म करते हैं और उन पास्टर्स के करेक्टर्स अगर आप देखें तो वो करेक्टर से आपको पता चल जाता है। फैमिली के अंदर जादू टूने किए जाते हैं। दैट इज द पास्टर्स फैमिली। क्या करेक्टर होगा उस पास्टर्स का जो अपने घर का अच्छा बंदोबस्त नहीं कर सकता? वो कलीसिया का क्या बंदोबस्त करेगा? हाउ ही कैन मैनेज द चर्च? आई टेल यू, इट्स नॉट अ जोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, पास्टर भी हेल में जाएगा और जितनी कलीसिया पूरी की पूरी हेल में जाएगी। Because church is not an entertainment place. वो गिफ्ट देने वाली प्लेस नहीं है, वो रोटियों वाली प्लेस नहीं है, वो रूहानी जगह है जहां खुदा का रूह आके ठहरता है। इसीलिए खुदावा ने सारे तख्ते उल्टा दिए थे कि तुमने इसे क्या बना दिया मेरे खुदा के घर को? ये तो दुआ का घर है, तुमने इसे तजारत का घर बना दिया है। Jesus is angry for all these things. You have to see the character of the pastor. आज हमें खुदा के खादम का किरदार देखना है।
किरदार देखना है, ये नहीं देखना कि ये चर्च बहुत भरा हुआ है, इसी में बहुत खुदा की बरकत है। शैतान उस जगह पे ज्यादा लोगों को लेके जाता है जहां उसे कोई डर नहीं होता। उसे पता है, किसी को क्या पता है कि मैं भी इनके साथ ही बैठा हूं, कोई भी मुझे नहीं टच कर सकता। इज वेरी इंटेलिजेंट, मोर देन ए बिलीवर ऑल्सो। शैतान बहुत चालाक है। But people follow who they trust, not who they fear. हमें उनके पीछे चलना चाहिए जिनके अंदर खुदा का खौफ हो। उनके पीछे नहीं चलना चाहिए जिन्हें कोई खुदा की पता ही नहीं। बस एक नाम, एक टाइटल दे दिया है कि मैं पास्टर हूं तो मैं जो मर्जी कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। I tell you, all the pastors also, included me, अगर मैं खुदावन के काम के लिए धोखेदारी, फ्रॉड करना शुरू कर दूं तो मेरा पास्टर कहलाना अच्छी बात नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धोखा देने से कैरेक्टर का पता चलता है कि अंदर क्या है। जो आपके अंदर फीड है वही बाहर आएगा। अगर आप किसी को चीट करोगे, किसी का फ्रॉड करोगे, किसी के ऊपर कमांडिंग करोगे, अगर आप किसी को सताओगे, परेशान करोगे, तो क्या फायदा है पास्टर होने का? खुदावन ने, यीशु ने क्या कहा कि मेरी भेड़ों की रहनुमाई कर, गलबा नहीं कर, ना कि उनके ऊपर कमांड कर। People stand on the word of God, not by the pastor fear. लोगों को खुदा के कलाम पे खड़े होने के लिए तैयार करें कि वो खुदा के कलाम के ऊपर खड़े हो। I have a very good experience. बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते, पास्टर आपने प्रीच किया, हमें समझाए, हमें समझ नहीं आई। बिकॉज बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है और आपने ये प्रीच किया है। आई थैंक गॉड फॉर दोज पीपल एंड आई एक्सप्लेन देम। और मैं उनको समझाता हूं। ये नहीं कि कोई मुझसे पूछने है तो मैं उनको लड़ने को पड़ जाऊं। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं पास्टर हूं कि तू पास्टर है? पास्टर वॉक इन ह्यूमिलिटी। उसे हलीम होना चाहिए, उसे हलीम होना चाहिए। नॉट कॉल पीपल, गेट इंफॉर्मेशन टू गेट द अदर चर्च। आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन लेते हैं और एक दूसरे के लोगों को कॉल करते हैं। दुबई में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है। 6 महीने इस चर्च में लोग जाते हैं, दूसरे 6 महीने दूसरे चर्च चले जाते हैं। उस पास्टर ने कॉल किया था, उसने हमें गाड़ियां भेजी, वो हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करता है, उसने हमें जॉब दिलाई है, इसलिए हम उस चर्च में जाते हैं। You have to answer, every one of you answer one day before the God. हर एक को एक दिन जवाब देना है खुदा की हजूरी में, खादमों को भी और लोगों को भी। Did he practice what he preached? खादम मैसेज तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बना के देते हैं, क्या अपनी जिंदगी में भी उसे लागू करते हैं? उनकी अपनी जिंदगियों में वो कलाम है जो वो लोगों को सिखा रहे होते हैं? हाँ, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, और अपने अंदर वो होता नहीं है। His private life matches with the public message. उसकी अपनी जिंदगी उस पैगाम के साथ मैच करनी चाहिए जो वो चर्च के अंदर सुनाता है। चर्च के अंदर कुछ और, बाहर आते ही खादम लोगों को गालियां देते हैं। हाँ, I heard it and I'm shocked. चर्च के अंदर इतने सालों से खादम है, 25 years, 30 years, बाहर लोगों को गालियां देते हैं। I'm shocked. I tell you, you lost your position from heaven. Whatever you do it, do it. कितने साल की जिंदगी है? 80 साल, 90 साल, 100 साल इस रूहे जमीन पर? एक दिन तो ऊपर ही जाना है ना। क्या जवाब दोगे? खुदा ने ये टाइटल दिया था और उसका क्या काम किया? जिस दिन हम गुनाह करते हैं, खुदा उसी दिन हमें उस टाइटल से बर्खास्त कर देता है। याद रखें,
Still you are a pastor, but from heaven you already removed. I tell you, you already removed from the heaven. You are no more pastor in heaven. It's already written in the word of God. जब सैमुअल ने साउल को कहा कि रुकना, मेरा वेट करना, कुर्बानी नहीं गुजारना, मैं जब आऊंगा तू करना, उसने कहा कि वो लोग मेरे नजदीक आ रहे थे, इसलिए मैंने कुर्बानी करके जंग शुरू कर दी और मैंने फतहमंदी हासिल की. And what Samuel said, now you are no more king. Finish. I tell you, you are a finished. You are a finished pastor in the heaven. Heaven will finish you up. जो मर्जी कर ले. But he's still the king. You are still in the earth. You are still in the pastor position. But heaven no more pastor. Finished. Your character is already manipulated. You're finished. आप इस पासवान कहलाने के लायक नहीं है. इसलिए वो बादशाह तो रहा. जब सैमुअल ने उसे कहा, वो बादशाह रहा और बहुत साल तक बादशाह रहा. लेकिन हेवन से उसे बादशाह बर्खास्त कर दिया गया. Did he practice what he preached? His private life matches his public message. उसकी प्राइवेट लाइफ को मैच करना चाहिए पब्लिक मैसेज के साथ. जो लोगों को सुनाया जाता है उसको उन दोनों के साथ मैच होना चाहिए. The pastor own life is the loudest sermon. उसकी अपनी जिंदगी जीता जागता मौजज़ा होना चाहिए. पास्टर की जिंदगी जीता जागता मौजज़ा होना चाहिए. That is the pastor calling. ये नहीं कि उसकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कोई मौजज़ात नहीं है, उसकी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है. The quality of the pastor we have to see and learn it. 1 Timothy chapter number 3 verse number 1 to 7. क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए एक पासवान के अंदर? पढ़े? This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one, vigilant and sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filth, looser, but patient, not a brawler, not covetous. One that ruleth well his own house, having his children in subjection, with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not no wise, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Okay, उर्दू में पढ़े, उर्दू करें. बात सच है कि जो शख्स निगहबान का अहद चाहता है, जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, ओके, निगहबान, would you like to become a pastor? जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, वो कैसा होना चाहिए? वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है. वो एक अच्छा काम है. अगर आपको बनना है पास्टर तो ये एक अच्छी बात है. वो अच्छी चीज की ख्वाहिश करता है. That is good. That is not harm. बस निगहबान को बेइल्जाम, निगहबान को सबसे पहले क्या होना चाहिए? बेइल्जाम होना चाहिए. निगहबान को क्या होना चाहिए? बेइल्जाम. लिव विद इंटेग्रिटी. सच्चाई के साथ उसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए. वो बेइल्जाम होना चाहिए. एक बीवी का शौहर, और वो एक ही बीवी का शौहर होना चाहिए. उसकी दो बीवियां नहीं होनी चाहिए. तीन बीवियां नहीं होनी चाहिए. परहेजगार, मुफ्ती, शाइस्ता, मुसाफिर पर और तालीम देने के लिए परहेजगार, ओके, सोबर माइंडेड, ओके, हॉस्पिटेबल, एबल टू टीच. आगे मुफ्ती, शाइस्ता, शाइस्ता, मुत्की, शाइस्ता, मुसाफिर पर वर्क और तालीम देने के लायक होना चाहिए. ये क्वालिटी होनी चाहिए पासवान के अंदर. अगर आप पासवान या निगहबान का ओहदा चाहते हैं तो ये क्वालिटी होनी चाहिए. बेइल्जाम होना चाहिए, है ना. आज पास्टर ही दूसरे पास्टर्स को इल्जाम लगाते रहते हैं.
ये मेरी भेड़ें चुरा के ले गया। हाँ, मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा था। दूसरे पास्टर, एक सीनियर पास्टर, मोर देन 60 ईयर एज, उसने कहा ये मेरी भेड़ें चुरा के ले गया। इवन वन सिंगल शीप इज नॉट फ्रॉम हिज चर्च। और उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि एंड व्हाट इज हैपन, आज वो भी बाहर है। जिस जगह पे जिन लोगों को इल्जाम लगा के, चुगली लगा के शिकायत की, आज खुदावन ने उनको भी उस जगह से बाहर निकाल दिया। एक बीवी का शोहर, प्रेज गॉड, सोबर माइंडेड, वाइज एंड सेल्फ कंट्रोल, ऐसा खादिम होना चाहिए जो वाइज हो और सेल्फ कंट्रोल हो, अक्लमंद होना चाहिए। वेलकमिंग एंड केयरिंग, मुसाफिर परगा, एबल टू टीच, स्किल टू एक्सप्लेन द स्क्रिप्चर, इस लायक होना चाहिए कि वो एक्सप्लेन कर सके कि खुदा के कलाम में इसका क्या मतलब है। नॉट ग्रीडी, मैंने देखा पैसों के लिए खादम अपने ही लोगों को धोखा दे जाते। जब पैसे देखते हैं तो जिनके साथ हर रोज जाते थे उन्हीं को चीट करना शुरू कर देते। ऐसे खादम मैंने देखे हैं। इट्स अ लाइफ प्रैक्टिकल टॉक। मैं कोई चीज आपको पढ़ी हुई नहीं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। I saw these type of pastors जो कि पैसों के पीछे चर्च को भी धोखा दे सकते हैं, पैसों के पीछे कुछ भी कर सकते हैं टू गेट द मनी। बहुत सारे मैंने पासवान देखे, और पाकिस्तान में तो ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर। पैसों के लिए गोरे को पकड़ लेंगे, उन्हें पिक्चर्स भेजेंगे पता नहीं कौन कौन से मफलूज बच्चों की, टूटे हुए घरों की, और उनसे पैसे मंगवाते रहेंगे। और नाम के आगे क्या लिखा है, पास्टर सो एंड सो। शर्म की बात है। ऐसे लोगों ने खुदा के इस टाइटल को भी बदनाम करके रखा हुआ है। लोग कहते हैं कुछ नहीं आता तो पास्टर बन जाओ, इट्स इजी जॉब। हाँ, पैसा आता रहेगा, एक गोरा पकड़ लो बाहर से, तस्वीरें भेजते रहो, शाम को तो दूसरा बोर्ड, तीसरे टाइम पे तीसरा बोर्ड, और वहां से पैसे। व्हाट अ शेम, शर्म की बात है। खुदा के कलाम को मजाक बना के रखा हुआ है। जेंटल नॉट वायलेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए पासबान के कलीसिया के साथ लड़ाई झगड़े करे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करे, लोगों को लान तान करे। गुड रेपुटेशन, रिस्पेक्टेड इनसाइड द चर्च एंड आउटसाइड द चर्च ऑल्सो। ये नहीं कि जब हम पास्टर के होते पे तभी हमारी लोग इज्जत करें, बाहर जाए तो लोग गालियां निकालें, अरे यार ये वो खादम है ना। पास्टर इज नॉट अ मैनेजर। पास्टर कोई मैनेजर नहीं है जो आपके ऊपर हुक्म चलाए कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये वक्त ये काम करना है। ही इज अ मैसेंजर, इज नॉट अ मैनेजर। उसे खुदा का पैगाम देना है आपको। लेकिन आज तक लोगों को, पास्टर्स को मैंने देखा वो मैनेजर बने हुए हैं। Not the owner of sheep, but the caretaker of the God's flock. बहुत से लोग कहते हैं मेरी भेड़ें हैं, मेरी भेड़ें हैं। ये किसी की भेड़ें नहीं है। I'm guaranteed you, ये किसी की भेड़ें नहीं है, खुदा का गला है, और उसके लिए खुदा ने हमें खिदमत करने के लिए चुना है। Then why you fight? This is my people, this is my people, this is my people. That's why Paul said. Some says I'm from Apollos, some say I'm from Paul, but everybody is from Christ. हर एक की यही प्रॉब्लम। ये कोई आज नई प्रॉब्लम नहीं है, ये उस जमाने में भी प्रॉब्लम थी। And the second thing, woman pastor is not allowed in the Bible. कोई औरत पास्टर नहीं है बाइबल के अंदर।
कोई भी, I am openly challenged into the Facebook Live. I'm right now in Facebook Live. I tell you, if one woman pastor is there in the Bible, you let me know. Wait. Woman pastor is not allowed in Bible. One verse in the whole Bible where you find the woman pastor leading the church. कहीं आपको नहीं मिलेगा. It's against the word of God. Woman pastor जो है वो खुदा के कलाम के खिलाफ है. वो खुदा के कलाम को रद्द करके बनाई गई है. Word of God, woman's pastor, people happily follow the woman's pastor. Happily. When you follow happily, you are also stand against the word of God. जब आप खुशी खुशी औरतों के पीछे चलना शुरू करते हैं तो आप खुशी खुशी खुदा को तर्क करना शुरू कर देते हैं. And you think that she is also ordained by God. That is a one single verse. एक भी आयत कोई मुझे निकाल के दिखा दे जहां पर पासबान जो है, पास्टर जो है, वो लेडी है. Old Testament and the New Testament also. Old Testament तो बहुत स्ट्रिक्ट था, औरतों को तो बोलने की भी इजाजत नहीं थी. Bible never shows a woman pastor by a title. कहीं भी किसी भी जगह पे वुमेन के लिए ये टाइटल इस्तेमाल नहीं किया गया. No woman called pastor. Appointment as a shepherd. Appointment कहते हैं shepherd को. Pastor को appointment कहा गया है और उसे shepherd कहा गया है. कोई औरत अगर आप बाइबल के अंदर दिखा दे कि जिसने निगहबानी का काम किया, पासबानी का काम किया है बाइबल के अंदर, ओके? No woman appointed as an elder or a bishop. बिशप जो है वो निगहबान के ओहदे को कहा गया. No woman publicly preach in the assembly over the man. कोई भी औरत किसी को ये हक नहीं था कि मर्दों के ऊपर इख्तियार जताए एक रूहानी मजमा के अंदर. ओके? किसी औरत को ये बाइबल के अंदर इख्तियार नहीं है. And I'm shocked. The pastor ordains the women's pastor also. ये तो काबिलियत है खुदा के कलाम के अंदर. क्यों नहीं है? पता ही नहीं कि खुदा के कलाम में एक भी ऐसी आयत हमें नहीं मिलती जिसमें लिखा गया हो कि वुमेन को ऑर्डेन किया जाए एज अ पास्टर. अगर ऑर्डेन करते, दे वांट टू बी हैप्पी द पीपल. उन्हें लोगों को खुश करना है, खुदा को नहीं करना. और जिन्हें खुदा को खुश नहीं करना वो जो कुछ कर सकते हैं. Women were used mightily in the word of God. औरतों को खुदा ने अपने कलाम में बहुत ज्यादा इज्जत दी है और कसरत से इस्तेमाल भी किया है. मगर वो ओहदे दूसरे हैं. वो पासबान का ओहदा नहीं है, वो पास्टर का ओहदा नहीं है. They are in the prophetic ministry. वो नबियां थी. जिस तरह आदमी नबी थे, वो नबियां थी. प्रोफेटिक मिनिस्ट्री थी. स्पिरिचुअल रेवलेशन वो लोगों के सामने खोल सकती थी और ये अलाउ था उस जमाने में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी. दे आर सपोर्टिंग विच इज द हेल्पिंग ऑफ मिनिस्ट्री. बहुत सारे लोग जो है नए टेस्टामेंट में प्रिसिल्ला की वो देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि वो भी जो है वो पॉल के साथ खिदमत करती थी और वो भी प्रीच करती थी. दैट इज नॉट लाइक दैट. ही इज नॉट ऑर्डेन्ड पास्टर. अगर मैं कहूं कि मेरे साथ मेरी बहन सिस्टर शादी खड़ी हो जाए और वो जाके इन लोगों को प्रीच करे और इन्हें सिखाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसे मैंने पास्टर बना दिया है. यू हैव अ फुल नॉलेज कि ये मिनिस्ट्री की एक सपोर्टिव है, मिनिस्ट्री के साथ सपोर्ट कर रही है, मिनिस्ट्री के साथ लोगों के साथ उन्हें पैगाम दे रही है. इज नॉट, हर टाइटल इज नॉट अ पास्टर. इनका टाइटल पास्टर नहीं है. ओके? दे आर अपोस्टोलिक assistants traveling or teaching alongside.
वो उनके रसूलों के साथ खिदमत करती थी, उनकी खिदमत गुजार थी, वो रसूलों की खिदमत गुजार थी, ताकि उनको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके आगे खाने पीने का बंदोबस्त हो, आगे जहां पे ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे लोग उनकी रहनुमाई करें। औरतों ने इस तरह खिदमत की है, नॉट अ पास्टर। कोई पास्टर औरत नहीं है। आज ट्रेंड बना दिया है। लोग राइनर्ड बॉन्के की वो मिसाल बहुत अच्छी तरह से कोट करते हैं कि एक आदमी डूब रहा था और उसने रस्सी फेंकी, और वो जो रस्सी फेंकी वो औरत ने फेंकी, और वो रस्सी उसने वो मरने वाला था, उसने वो रस्सी को पकड़ लिया, क्योंकि वो रस्सी जो थी औरत ने फेंकी, उसने ये नहीं देखा कि ये औरत ने फेंकी या मर्द ने फेंकी, उसने रस्सी को पकड़ा और वो बच गया। दैट इज डिफरेंट स्टोरी। हर एक चीज की डिफरेंट स्टोरी। लोग इधर उधर से सुन के उसे अपने अपने हिसाब से उसे ऐड कर देते हैं, बट नथिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दे आर द वुमेन्स आर इंटरसेसर। वो इंटरसेसरी प्रेयर कर सकती हैं, लोगों के लिए खड़े हो सकती हैं, लोगों के लिए दुआएं कर सकती हैं, स्पिरिचुअली कवरिंग कर सकती हैं, लोगों को उनकी रहनुमाई कर सकती हैं। वुमेन रोल इन द बाइबल, जजेस 4:5, कज़ाब जो है उसका चौथा बाब उसकी 5वां है। डिबोरा पुराने अहदनामे में जजेस एंड प्रॉफिट, वो प्रॉफिटेस भी थी और वो जजेस भी थी, बट नॉट अ प्रीस्ट एंड नॉट अ पास्टर। या रीड। Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at that time. ओके, सो वो कौन थी? वो प्रॉफिटेस भी थी, वो नबिया भी थी, और अदालत भी करती थी, जज भी करती थी। बोथ उसके पास टैलेंट था, लेकिन ना तो वो प्रीस्ट थी और ना ही वो पास्टर थी। समझ गए आप? लोगों को इस चीजों का पता नहीं होता, एंड दे विल बी हैप्पीली जॉइन द वुमेन्स मिनिस्ट्री। हुल्दा सेकंड काइंड, वर्स नंबर 22, चैप्टर नंबर 22 एंड वर्स नंबर 14। हुल्दा, शायद आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। दूसरा सलातीन उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत। So Hilkiah the priest and Ahikam and Achbor and Shaphan and Asaiah went unto Huldah the prophetess. हुल्दा कौन थी? नबिया थी, पास्टर नहीं थी। प्लीज बी केयरफुल, पास्टर को और प्रॉफिट को मिक्स मत करें। हाफ इंफॉर्मेशन दे के लोगों को गुमराह ना करें। हुल्दा ये थी। हुल्दा कौन थी? एक नबिया थी। The wife of Shalom, the son of Tikva and son of Harhas, keeper of the wardrobe. ओके, और नए आयत में अगर हम देखें तो हमें लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 36 to 38, नए आयत में चैप्टर बुक ऑफ लूक, लूका की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 36 और इसकी 38 आयत। And there was one Anna, a prophetess, the daughter of आना कौन थी? प्रॉफिटेस थी, वो नबिया थी, वो पास्टर नहीं थी, वो पासबान नहीं थी। प्लीज अपने दिमाग को खोले, ऐसे लोगों के फॉलो मत करें। एक्ट्स चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 26। verse number 18. Yeah, 26. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfect. Okay? ये प्रिस्किला जो थी वुमेन थी, उसका आदमी अकुला था, और ये दोनों मियाँ बीवी भी पॉल के साथ खिदमत करते थे, और ये जो थे उसके को लेबर थे, उसके साथ मिल के खिदमत करते थे। विद द पॉल हेल्पिंग टीच अपोलोस प्राइवेटली, इन्होंने अपोलोस को क्या था, प्राइवेटली जो था उसे टीच करना शुरू किया। ना कि ये खुदा के खादम थे, ना ये औरत जो थी वो खुदा के मजहब पे खड़े होकर एज अ पास्टर प्रीच करती थी। Romans chapter number 16 verse number 1. I commend
unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchreae. ओके, ये कौन थी? एक डायकोनोस थी, एक डीकन थी, एक खिदमत गुजार थी, ना के पास्टर थी ये, which is a servant of the church. खिदमत गुजार थी, कोई पास्टर नहीं थी. So ये वो औरतें हैं जो खुदा के कलाम में खिदमत करती थी, not a pastor, not a priest. Okay? Maryam Magdalene, the first witness and the messenger of the resurrection of Jesus Christ of Nazareth, वो पहली औरत थी जिसने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी. वो पास्टर नहीं थी, वो पासबान नहीं थी. Please try to understand the role of the woman in the Bible. बाइबल के अंदर औरत जो है वो प्रोफेटिस हो सकती है, नबिया हो सकती है, डीकन हो सकती है, हेल्पर हो सकती है, टीचर हो सकती है, इवेंजलिस्ट हो सकती है, इंटरसेसरी प्रेयर करने वाली एक औरत हो सकती है, बट नॉट अ पास्टर. एक पासबान नहीं हो सकती. नॉट अ पास्टर. Pastor, elder, bishop, no record or no approval in the word of God. Paul clear instruction. 1 Timothy chapter number 2 verse number 12 to 14. Strict instruction by Paul to the pastor Timothy. Verse number 12 to 14. Verse number 2. No, 12. But I suffer not a woman to teach, not to usurp authority over man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve, and Adam was not deceived, but the human being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be. Okay? समझ आ गई है? यहां पे उसने सख्ती से मना कर दिया है कि औरत जो है वो आदमी के ऊपर हुक्म नहीं चला सकती, क्योंकि आदमी पहले, खुदा के कलाम के मुताबिक आदमी पहले बना है, तो वो औरत जो उसके अंदर से निकली है वो उसके ऊपर हुकूमत नहीं जता सकती. दैट इज द स्पिरिचुअल अथॉरिटी, उसके ऊपर वो मुकर्रर नहीं कर सकती. इफ यू फॉलो द वुमन पास्टर, यू आर स्टैंड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड. आप खुदा के कलाम के खिलाफ जाते अगर आप वुमेन पास्टर्स को फॉलो करते. उर्दू में करें 12 से 14. और मैं इजाजत नहीं देता कि और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए. ही इधर क्लियरली वो कहता है कि मैं तो इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए. किसको? मर्द को. या मर्द पर हुक्म चलाए. या मर्द पर हुक्म चलाए. औरतें आजकल मर्दों पे हुक्म चला रही हैं, क्योंकि वो पास्टर हैं और मर्द जो है खुदा के कलाम को जानते नहीं, इसीलिए वो उस हुक्म के अंदर आ जाते हैं जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है. पढ़े आगे. बल्कि चुपचाप रहे. बल्कि चुपचाप रहे. चुपचाप रहे. क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, उसकी वजह से गुनाह. देन हाउ द गॉड अलाउड अगेन वुमन टू डोमिनेट ओवर द मैन. फिर खुदा किस तरह दोबारा औरत को इजाजत दे सकता है कि वो आदमियों के ऊपर हुक्मरानी करे. This was not a culture comment. Only Paul ties into the creation order. ये कोई रस्मी चीजें नहीं थी, तहजीब के साथ नहीं थी. ये खुदा के कलाम के मुताबिक उसने कहा है कि पहले आदम और फिर हवा किस तरह आदमियों के ऊपर हुक्म चला सकती है और उन्हें कलाम सिखा सकती है. That's why the pastoral office, which includes the spiritual authority and teaching over man, is not given to women. इसलिए जो पास्टर्स की अथॉरिटी है वो स्पिरिचुअली जो है खुदा के कलाम के मुताबिक वो नहीं दी गई. वो रूहानी इख्तियार औरत को नहीं दिया गया कि वो मर्दों को क्या करे? सिखाए. He said no.
In scripture, 1 Corinthians chapter number 14, verse number 34 and 35. पहला करंथियों उसका 14 बाब, उसकी 34 और उसकी 35वीं आयत. Let your women keep silence in the churches. Let the woman keep silence in the church. अगर वो कहता है कि औरतें जो मजमा में, रूहानी मजमा में, चर्च में, कलीसिया में खामोश है, तो वो किस तरह पास्टर हो सकती हैं? For it is not permitted unto them to speak, but they are. For it is not permitted unto them to speak. उन्हें ये इजाजत भी नहीं थी कि वो कलीसिया के अंदर रूहानी बात कर सकें. But they are commanded to be under obedience, as also says the law. उसने कहा कि शरीयत में भी लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम में पहले से लिखा हुआ है. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is shame for women to speak in the church. ये शर्मिंदगी की बात है कि औरत का कलीसिया के अंदर, रूहानी मजमे के अंदर बोलना शर्म की बात है. And 36. What came the word of God out from you, or it came unto you only? If ओके, उर्दू में पढ़े. औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबेदार रहें, जैसे तौरात में भी लिखा है. और अगर तू कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शौहर से पूछ. औरतें कलीसिया के मजमा में क्या रहे? खामोश रहे. ओके, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहे, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहे, जैसे तौरात में भी लिखा है. तो अभी तौरात चेंज कर दी है लोगों ने, पास्टर बना दिया औरतों को. तौरात चेंज कर दी ना. तौरात में ये लिखा हुआ है, when you follow the known spiritual things, you are stand against the God. आप खुदा के खिलाफ खड़े रहते हैं. And don't think there is a miracle happen. Nothing is happened. Devil also perform the many miracles also. शैतान भी आपको जॉब दे सकता है, शैतान भी बच्चे दे सकता है, शैतान भी आपकी सारे काम को करा सकता है. ओके, लोग क्या करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, जादू टूने भी कराते हैं, डबल काम करते हैं. ओके, ये भी याद रखें. ये ना सोचे कि सिर्फ पासवान की दुआ से ये सारे काम हो रहे हैं. लोग पीछे पीछे दूसरे काम भी शुरू कर देते हैं. अभी तक काम हुआ नहीं, चलो ये भी काम कर देते हैं. और पास्टर को, पासवान को पता भी नहीं होता, वो समझता मेरी दुआ से हो रहा है. सही कह रहे गलत? Come on, it's true. और अगर कुछ सीखना चाहेंगे तो घर में अपने अपने शोर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना जो है शर्म की बात है. अगर उनका बोलना शर्म की बात है, how you can people are follow the woman's pastor? कितनी शर्म की बात है कि हम खुदा के कलाम को रद्द करके औरत के पीछे चलते हैं. Now I tell you why this Paul said. You want to finish here or you want to continue? Then I will pray for all of you. If you want to finish, I will pray. If you don't want to know, अगर आप चाहते हैं कि आप और सीखें, तो मैं इसे और 10 मिनट में और इसे खत्म करूंगा, अगर उसके बाद हम दुआ नहीं कर पाएंगे. Okay? Learn it? yes. So, in both Corinthus and Ephesus, ये दो बड़ी कलीसियां थी, ये वो दो बड़े शहर थे. ओके, और यहां पे जो पास्टर था वो तिमोथी था. तिमोथी जो था इस जगह का पास्टर था. In both Corinthus and Ephesus, where Timothy was pastor, there was a confusion. वहां पे ये बहुत सारी confusion आ चुकी थी, क्योंकि जो लोग वहां से मसीह को कबूल करके आ रहे थे, they all are pagans. और वो सब बुतपरस्त लोग थे. ठीक है? In that area, in that culture, there is a lot of pagans temple. उस एरिया के अंदर बहुत सारे जो थे बुतपरस्त मंदिर थे. बुतपरस्त लोगों के क्या थे? मंदिर थे. And there is a female priestess. ये जो सिस्टम था फीमेल पास्टर्स का, प्रीस्ट का, ये बुतपरस्त और बुतों की पूजा करने वाले लोगों का ये दस्तूर था. फीमेल पास्टर्स, जो प्रीस्ट थी, वो उनके मंदिरों के अंदर पाई जाती थी. ये जो फीमेल्स ऑर्डेन्ड करती थी, पास्टर्स थी, जो प्रीस्ट थी, वो उनके अंदर फीमेल्स को, प्रीस्ट को रखा जाता था. ओके, who dominate and deceived man
That culture is a pagan culture. और वो लोगों को, मर्दों को क्या करती थी? गुमराह करती थी। कोई भी मर्द किसी भी औरत के झांसे में आराम से आ सकता है। I tell you, even though I can also. कोई भी मर्द, जितना भी बड़ा मर्द हो जाए, औरत के झांसे में आ ही जाता है, इजीली आ जाता है। या तो आंसू देख के, या उसकी दुख भरी दास्तान देख के, या उसकी ब्यूटी देख के। कोई भी मर्द, हमदर्दी आ गई हमारे लिए, है ना? सही कह रहा हूं गलत? सही कह रहा हूं गलत? कोई भी औरत, एंड दैट इज द ट्रिक ओवर देयर। उन्होंने अपने मंदिरों के अंदर औरतों को प्रीस्ट बना के रखा हुआ था, ताकि वो क्या करें? मर्दों पर हुकूमत करें। That is a pagan culture. We adopted the pagan culture in the churches. When you ordain the female pastors and the priests, that is the pagan culture. In Corinthians and Ephesus, who dominate the saved man, that culture is a pagan culture where women became priestess. ये उनका कल्चर था जिसमें औरत जो थी वो पास्टरबानी का काम करती थी, प्रीस्ट का काम करती थी, और वो जो थी पास्टर्स का काम करती थी। And Paul doesn't want pagan culture adopted in the church. इसलिए उसने खुदा के कलाम को कहा है कि ये खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, ये शरीयत में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। That is a pagan culture. The female pastor and priest is a pagan culture. Go and search in Google. I will tell you. Go and search in the ChatGPT. Go and search anywhere. That is the pagan culture where the woman is the pastors and the priest. I tell you live. Go and find out, search, and you can find out. Paul was not limiting women forever. He was cutting off the pagan influence. वो औरतों को तरक नहीं कर रहा था, औरतों की बेइज्जती नहीं कर रहा था, वो इस कल्चर को अगेंस्ट था कि women pastors नहीं हो सकती। How? He's not against the women. He against the culture. He is against the spirituality. उस रूहानी ताकत के लिए वो खड़ा था, और खुदा के पाक ने से यह अक्ल और दनाई दी थी। Paul was not limiting the woman forever. He was cutting off the pagan influence that perverted divine order. Perverted वो खराब कर रहे थे। Divine order क्या था कि आदमी ही औरत को सिखाएगा, लेकिन पेगन जो थे उन्होंने बुत परस्त लोगों ने ये बना लिया था कि औरतें ही आदमियों को सिखा सकती। The temple of Artemis in Ephesus was the one of the seven wonders of the ancient world. अर्थमस देवी का जो मंदिर था इफिसस के अंदर, वो उस जमाने के अंदर सातवां अजूबा था। अर्थमस देवी का जो मंदिर था वो एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर सातवां अजूबा था। द गॉडेस अर्थमिस इज इन अ ग्रीक कल्चर। जिस कल्चर के अंदर ये खुदावन यीशु मसीह थे, जिस कल्चर के अंदर ये सारे रसूल थे, ये ग्रीक कल्चर था। और इस कल्चर के अंदर जो सबसे बड़ी देवी मानी जाती थी वो अर्थमस देवी थी। अर्थमस इज इन द ग्रीक कल्चर मीनिंग द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी वो जरखेज करने की, जो पैदावार, जो खेत वगैरह के काम करते थे, उनकी पैदावार में उनको बरकत देती थी। हंटिंग, शिकार पे लोग जाते थे तो उसके लिए चढ़ावा चढ़ाया करते थे। एंड द चाइल्ड बर्थ, अर्थमस देवी के लिए, वो बच्चों के लिए, विलादत के लिए अर्थमस देवी को बुलाया करते थे कि बच्चों की डिलीवरी हो जाए, औरत आराम से डिलीवरी कर सके। बट द सेम गॉडेस इन द रोमन कल्चर इज कॉल्ड द डायना। रोमन कल्चर के अंदर वही देवी का नाम क्या था? डायना था। डायना और अर्थमस कल्चर दोनों डिफरेंट थे। ओके, जिस तरह अगर आप देखें तो इंडियन कल्चर के अंदर धोती पहनते हैं, है ना, कुर्ता पहनते हैं। पाकिस्तानी कल्चर के अंदर शलवार कमीज पहनते हैं, ऐसे ही है ना। वुमेन्स मोस्टली क्या करती है? साड़ियां पहनती हैं। पाकिस्तान के अंदर शलवार कमीज, क्योंकि वो कल्चर दोनों डिफरेंट है।
सेम एज इट इज देयर इज अ रोमन कल्चर एंड अ ग्रीक कल्चर, और वो उस जमाने के अंदर ये दो कल्चर बहुत ही मशहूर कल्चर माने जाते थे। इन रोमन कल्चर डायना और आर्टेमिस इज द सेम आइडल, डिफरेंट नेम डिपेंडिंग, दोनों एक ही थी, देवी एक ही थी, लेकिन दोनों कल्चर के अंदर उन्हें डिफरेंट नाम से पुकारा जाता था और उनके डिफरेंट कैरेक्टर को पूजा जाया करता था। ओके, और a language or an empire, the Roman equivalent of Artemis known as a moon goddess, डायना जो उनकी थी रोमन कल्चर के अंदर वो मून की देवी थी, है ना। देन हिंदुइज्म में है ना, वो मून को देखते हैं, चांद को देखते हैं ना, दैट इज अ गॉडेस, ये उनका कल्चर था। मून गॉडेस एंड प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन, प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन, औरतों को बचाने वाली औरत थी वो। एंड इट वॉज अ मैसिव एंड अ वुमेन डोमिनेटेड वर्शिप सिस्टम, इसलिए औरतों का जो वहां सिस्टम था वो इतना डोमिनेट था कि मर्द वहां पे बात नहीं कर सकते थे। सारी वर्शिप कौन करती थी? औरतें किया करती थी, और वो वर्शिप करके लोगों को, मर्दों को अपने पास और आसानी से खींच लेती थी। द हाई प्रीस्ट वर अ वुमेन एज अ फीमेल, जो उनकी हाई प्रीस्ट हुआ करती थी, जो सरदार काहिन हुआ करती थी, वो एक औरत थी। और ये किसका कल्चर था? पेगन कल्चर था। इफ यू फॉलो द लेडी पास्टर, यू फॉलो द पेगन कल्चर। वो पेगन कल्चर को आप क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अथॉरिटी वाज सुप्रीम इन दैट टेंपल। जो वुमेन, जो उनकी हाई प्रीस्ट थी, उसके पास इतना इख्तियार था कि वो हर जगह के मंदिरों के ऊपर कंट्रोल कर सकती थी। They ruled over man spiritually. Many of the priestess were also temple prostitute. वो जो वहशियाना काम करती थी, वो एक्चुअली वही की औरतें थी जो के पासबानी का काम भी करती थी, प्रीस्ट का काम भी करती थी, खिदमत का काम भी करती थी, और वहशियाना काम भी करती थी। What do you think if your Paul knows everything? He allowed the women is going to be stand in the churches? Now आप सोचें, क्या पॉल को ये सब पता है और वो अलाउ कर सकता है कि खुदा की कलाम की बेहरमती हो, उसके घर की बेहरमती हो, उसके कलाम की बेहरमती हो? ये पेगन कल्चर है जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं। That's why I put it in the Facebook live, so that the people we understand, we follow the pagan's culture. That is the pagan's culture. What they are doing, they're combining religion with immorality. वो क्या करती थी? मजहब को और बदचलनी को मिला के पेश करती थी। That is the pagan culture. वो मजहब को और बदचलनी के कामों को मिला के लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, इसलिए उनके मंदिर भरे रहते थे। That's why women is dominated over man. इसीलिए औरतें जो थी वो मर्दों के ऊपर हुकूमत किया करती थी। And men were often subservient to women in cult. और फिर वो उनकी जादूगरी में, उनकी हर उस काम में औरतों के ताबेदार रहते थे। औरतें हेड थी और बाकी सारे काम मर्द किया करते थे। Because that is a culture. In Corinthian city also had a similar pagan influence. करंथन्स की कलीसिया, करंथियों की कलीसिया के अंदर भी सेम यही इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और इन दोनों जगह का पास्टर कौन था? तिमोथी था। पॉल ने सख्ती से मना कर दिया है कि अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए चर्च के अंदर। Also had a similar pagan influence, especially the center around the Aphrodite, the Venus, the goddess, the Aphrodite, उनका जो देवी थी वहां की, वो जो वीनस देवी थी वो बहुत बड़ी थी और इसका बहुत नाम था, और इस देवी को मोहब्बत और जिस्मानी ख्वाहिश की देवी कहा जाता था। ओके, the temple of Aphrodite in Corinth reportedly had over 1,000 female pastors. उनके मंदिरों के अंदर 1,000 औरतें थी। सारे काम औरतें करती थी, तो मर्द आएंगे या नहीं आएंगे?
Many times I see the female pastors are calling to the people, the man who very stubborn, the man who's a very arrogant. जैसे लड़की की आवाज सुनते हैं, जी 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 जी. That is a pagan culture. Be man. ये pagan culture है. Be man. Who served as a temple as a prostitute? वो 1000 जो पास्टर थी, प्रीस्ट थी, वो एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट का काम भी करती थी, वैश्याना काम करती थी, अपने जिस्मों को फरोश करती थी, और वो सुबह में मंदिरों में होती थी. ओके, their worship involved sexual ritual to the please the goddess. उस देवी को खुश करने के लिए वो सारे जिस्मानी काम भी मजहब के साथ मिलकर करते थे. Women use their sexuality and authority to dominate man spiritually and emotionally. अब पता चला है कि क्यों पॉल बेचारा शोर डालता है कि औरत पासबान नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये औरतों का काम था उस जमाना के अंदर, जिसकी वजह से पॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया. उसने कहा ये नहीं होना चाहिए, इसे मैं अलाउ नहीं करता. He never permitted the women as a pastor. Now you understand why Paul spoke against the female authority in the church. इसीलिए उसने चर्च के अंदर इस अथॉरिटी को जो है सख्ती से मना किया कि खुदा के घर में औरत जो है हुक्म ना चलाए, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, सुना था कि औरतें मंदिरों में क्या करती हैं और बाहर में वो क्या करती हैं. अगर यही कल्चर कलीसिया के अंदर आ गया तो खुदा का कलाम और उसकी मिनादी जो है खत्म हो जाएगी और शैतान जो है फिर जीत जाएगा. दैट इज अ पेगन कल्चर. आज जितने भी लोग वुमेन्स को फॉलो करते हैं, प्लीज go and study. I tell you, go to the Google, go to the ChatGPT, whatever there is whatever there is a website, you go and find out, and then you can learn from the Word of God. You are stand against the Word of God, or you are follow the true Word of God. So when the woman got saved, they came into the church. वही औरतें जब उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, वो सेव हो गई, वो बच गई, क्योंकि जो भी हमारे गुनाह होते हैं खुदावन यीशु ने उसे की कीमत चुका दी और वो सब के सब माफ हो गए. वो जितने भी बदचलनी के काम थे, जितने भी उनके काम थे, खुदावन ने उन सब से उनको माफ कर दिया, क्योंकि खुदावन को कबूल करने से हमें माफी मिल जाती है. और उन्होंने खुदावन के कलाम को कबूल किया और वो खुदा के घर में आना शुरू हो गई. लेकिन कल्चर तो उनका वही था, बातचीत करने का स्टाइल तो वही था, काम करने का तरीका तो वही था, है ना? था या नहीं? Yes. तो उसीलिए पॉल ने उसे मना किया कि औरतों का मजमे में बोलना भी शर्म की बात है, स्ट्रिक्ट. क्योंकि वो औरतें जब उन्होंने खुदावन को कबूल किया तो खुदा के घर में, that's why there is no pastor, no priestess. ये पेगन कल्चर था. The same spirit of control in Christianity, worship, Paul guided by the Holy Spirit corrected it. वो जो खुदा का पाकरू पालूस को रहनुमाई करता था, उसी ने इस चीज को दुरुस्त करवाया. अगर ये खुदा के कलाम में होता तो ये ना लिखता. Have you got it my point? ये पेगन कल्चर है. जाए फॉलो करें वुमेन्स पास्टर को और पेगन कल्चर को अपनाएं, बुत परस्ती के कल्चर को अपनाएं, and then I will see how the God is going to bless you. There is not God is blessing you. There is a goddess is going to be provide you, and you are not understand is a God or is a goddess. फिर आपको ये भी नहीं पता चलेगा जो चीजें मिल रही है वो खुदा दे रहा है या देवियां दे रही है आपको. The spirit behind Artemis and Diana represent the rebellion against the divine order. जो इसके पीछे की जो रूह थी वो खुदा के उस
पूरे सिस्टम के खिलाफ थी, डिवाइन ऑर्डर के खिलाफ थी। उनका लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं था। देवी देवताओं का जो शैतान नीचे गिराया गया, उसके साथ जो देवी देवताएं, जो फरिश्ते नीचे गिराए गए, जब जमीन पर उन्होंने हुकूमत की तो लोगों को अपनी तरफ खींच लिया, और लोगों को इसीलिए वो बुराई की तरफ लेके जाते हैं ताकि खुदावन के कलाम के अगेंस्ट हो जाए। एंड इजीली यू आर अगेंस्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। इजीली हम लोग खुदा के डिवाइन ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाते हैं। हम इसे नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट संडे, और खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत। God bless you.